السلام علیکم، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آفٹر دی اسٹارم قسط نمبر 21۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ مس ریٹا، جگن ناتھ نے پکارا۔ ریٹا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خالی نظروں سے سامنے والی دیوار کو گھور رہی تھی۔ جگن نے اس کا سرد ہاتھ تھام لیا، پھر اسے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، آپ ابھی بول نہیں سکتی، مگر اس کے باوجود بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ آپ میری بات سن رہی ہیں نا، سمجھ رہی ہیں نا؟ اگر سمجھ رہی ہیں تو میرا ہاتھ دبا دیں۔ اس کے اعصاب کھینچ رہے تھے، وہ کسی رد عمل کا منتظر تھا۔ اب وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر جگن کو اپنے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ واضح طور پر محسوس ہوا۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ سے دوڑنے لگی۔ اس نے اپنا ہیجان چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، تو آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ گڈ۔ اب میں آپ سے کوئی سوال کروں گا، بہت آسان سوال۔ جواب ہاں میں ہو تو میرے ہاتھ کو ایک بار دبائیے گا، جواب نہیں میں ہو تو 2 بار دبائیے گا، سمجھ گئی؟ اس کے ہاتھ پر خفیف سا دباؤ پڑا۔ بہت خوب، اب میرے سوال غور سے سنیں۔ آپ اس وقت اسپتال میں ہیں، آپ بہت جلد اچھی ہو جائیں گی، لیکن فی الحال آپ کے لیے اسپتال میں رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ بتائیں، آپ کو یاد ہے گزشتہ رات کیا ہوا تھا؟ آپ اسپتال میں کیوں ہیں؟ چند سیکنڈ کے توقع کے بعد ریٹا نے اس کے ہاتھ پر 2 بار دباؤ ڈالا۔ نہیں، چلے ٹھیک ہے، میں یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک شخص آپ سے ملنے آپ کے فلیٹ آیا تھا، آپ نے اسے گھر میں آنے دیا۔ اس شخص نے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ ریٹا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس کا دوسرا ہاتھ اپنے گلے کی طرف گیا۔ اس کے علاوہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ آپ اس شخص کو جانتی تھیں؟ جگن نے پوچھا۔ ہاتھ پر ایک بار دباؤ پڑا۔ آپ سیمور کوئن کے ساتھ رہ رہی تھی، میرا مطلب ہے وہ آپ کے فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ ایک بار دباؤ۔ تو کل رات آنے والا سیمور کوئن کا کوئی دوست تھا؟ چند سیکنڈ کی ہچکچاہٹ کے بعد ریٹا کے چہرے پر پریشانی نظر آئی، پھر اس نے جگن کا ہاتھ ایک بار دبایا۔ اب اس کا نام بتا سکتی ہیں؟ دہکتی ہوئی آنکھیں جگن کے چہرے پر جم کر رہ گئی۔ جگن اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ اپنے منجمد یادداشت کو ٹٹول رہی ہے، لیکن جگن کو جواب نہیں ملا۔ آپ کو معلوم ہے وہ شخص کہاں رہتا ہے؟ ریٹا نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ یاد کرنے کی کوشش میں ناکام ہو گئی تھی۔ جگن کو بھی تھکن کا احساس ہونے لگا۔ وہ مایوسی کا رد عمل تھا۔ وہ کامیابی کے بہت قریب پہنچنے کے بعد ہار گیا تھا۔ اسی وقت ڈاکٹر آ گیا، پلیز، آپ کو بہت وقت مل گیا، اب مریضہ کو آرام کرنے دیں۔ جگن اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ایک اہم بات یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ذرا سا اور موقع۔ یہ بے حد خطرناک ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابھی دماغ پر زیادہ زور ڈالنے سے یہ خطرہ ہے کہ یادداشت جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر۔ ہوا کا زور بڑی حد تک کم ہو گیا تھا، موجوں میں پہلی والی تندی نہیں رہی تھی، اندھیرا بھی خاصا کم ہو گیا تھا۔ آسمان پر اب بھی گہرے سیاہ بادل تھے، وقفے وقفے سے بارش بھی ہو رہی تھی، لیکن طوفان جیسی خطرناک صورتحال نہیں تھی۔ 6:30 بجے تک آسمان نظر آنے لگا، مگر پھر اندھیرا ہونے لگا۔ رات کی آمد تھی، مگر اس مختصر سے وقت میں انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ پور بندر کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے سکون کی سانس لی، اب وہ اتنے ڈھال ہو چکے تھے کہ کسی وقت ڈھیر ہو سکتے تھے۔ ڈیوڈ کیلی نے جسمانی مشقت کم کی تھی، لیکن اس کو جذباتی بوجھنے نے ڈھال کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے پمپ چلائے ہوئے تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ مطلوبہ مقام کے قریب پہنچ گئے تو سیمور نے جے کو ہٹا کر ویل خود سنبھال لیا۔ وہاں چٹانوں کا ایک سلسلہ تھا جہاں وہ لنگر انداز ہو سکتے تھے۔ سیمور چٹانوں کی طرف جانے والے راستے کی تلاش میں نظریں دوڑا رہا تھا۔ روشنی اب تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ انہیں بس چند سیکنڈ میں چٹانوں کے درمیان پہنچ جانا چاہیے تھا، ورنہ پھر یہ ممکن نہ رہتا۔ وہ بوٹ کو چٹانوں سے کوئی 100 گز دور رکھ کر سٹیئر کر رہا تھا۔ وہ ایسی چٹانیں تھیں جن میں جا بجا کیلے سے نکلی ہوئی تھی۔ ہوائیں اور موجیں چٹانوں میں صدیوں سے رخنے بناتی رہی تھی۔ بعض رخنے ایسے تھے کہ اتنی کم روشنی میں خلا معلوم ہو رہے تھے۔ سیمور بہت محتاط تھا۔ وہ بوٹ کو چٹانوں کے اور نزدیک لے گیا۔ اب فاصلہ 40 گز رہ گیا تھا۔ یہ خطرناک بھی ہو سکتا تھا کیونکہ چٹانوں سے ہٹ کر پانی میں چھپی ہوئی چٹانوں کی موجودگی خارج از امکان نہیں تھی، لیکن راستہ تلاش کرنا بھی ضروری تھا۔ اچانک سیمور کو ایکو فائنڈر کا خیال آ گیا۔ وہ اس کے دائیں ہاتھ پر شیلفز کے بورڈ کے ساتھ کسا ہوا تھا۔ وہ الٹراسونک فریکوینسی پر کام کرنے والا آلہ تھا۔ اس نے اس کا سوئچ آن کیا۔ آلے کی گہرائی کے اسکیل پر فوراً ہی 4 فیدم کا نشان چمکا، یعنی بورڈ کے پیندے کے نیچے 24 فٹ پانی تھا، یعنی تسلی بخش۔ کیا بات ہے سیمور، کیا نظر کام نہیں کر رہی؟ باہر جے ہاتھ روک کر چلایا۔ سیمور نے اسے نظر انداز کر دیا اور پوری توجہ سے اپنے بائیں جانب دیکھتا رہا۔ سیمور، لنگر گراؤ گے یا نہیں؟ جے پھر چیخا۔ شٹ اپ، سیمور بھی چلایا۔ اس نے جے کو ایک لمحے کے لیے خونخوار نظروں سے گھورا، پھر نظریں ہٹا لی۔ اچانک اسے ایکو فاؤنڈر میں ایک غیر معمولی تبدیلی نظر آئی۔ پھر وہ حیران پریشان روشن اسکیل پر اسے مسلسل گرتے دیکھتا رہا۔ گہرائی 1.5 فیدم اور پھر صرف 1 فیدم رہ گئی۔ آدھے فیدم پر سیمور بہت تیزی سے حرکت میں آیا۔
बोट के पैंदे के नीचे अब सिर्फ 3 फीट पानी था। इसने तेजी से बोट का रुख गहरे पानी की तरफ कर दिया। पंप चलाने वाले दोनों अफराद खुद को ना संभाल सके और लुढ़क गए। सीमोर ने जे को गालियां देते सुना, लेकिन इस तरफ देखा नहीं। एक मौज उठी, फिर पानी कम हुआ तो इसे पानी में छुपी वो चट्टानें नजर आई जिनसे बोट बाल बाल बची थी। सीमोर को पसीना आ गया। बोट अब गहरे पानी की तरफ बढ़ रही थी। 5 फीदम, 8 फीदम, 15 फीदम। ये उठ खड़ा हुआ, मगर अब वो इसे गालियां भी दे रहा था। डेविड कैली खूबसूरत नजर आ रहा था। सीमोर ने कश्ती का रुख दुरुस्त किया और दोबारा इसे इसी रास्ते पर ले चला। इको फाइंडर के स्केल पर गहराई फौरन ही गिरना शुरू हो गई। 12 फीदम, 9, 7। इसने चट्टानों की तरफ निगाह की। इसे अचानक एक खला नजर आया जो शुमाल मगरिब की तरफ उम्मूदन जा रहा था। अगले लम्हे उस खला की नजरों से ओझल हो गया। इस वक्त तक सीमोर की परेशानी इस हद तक पहुंच चुकी थी कि अब वो सिर्फ अपनी जिबिलत पर एतबार कर सकता था। जिबिलत इसे बता रही थी कि बोट अभी गहरे रास्ते से गुजरी है। अगर वो रास्ता इस खला की तरफ जाता था तो कम से कम ये इम्कान मौजूद था कि खला इतना कुशादा जरूर होगा कि बोट इसमें से गुजर सके। सीमोर ने स्टार बोट की तरफ देखकर रुक करके जे को पुकारा, मैं बोट को घुमाने वाला हूँ। फिर वो केली की तरफ मुड़ा, ओ भाई खुद को संभाल कर रखना। ये कहते इसने बोट को तेजी से 180 दर्जे पर मोड़ा। एक तंग दायरे में बोट को घुमाने के बाद वो इको फाइंडर को देखता रहा। जैसे ही गहराई में अचानक इजाफा हुआ, इसने समझ लिया कि गहरा रास्ता आ गया है। इसने तेजी से बोट को 90 दर्जे पर मोड़ लिया। अब वो इस दहाने की तरफ बढ़ रहा था जो दर हकीकत नजर नहीं आ रहा था। यह भी तय नहीं था कि वो वाकईतन वहां मौजूद है। सीमोर बस इको फाइंडर पर मुसलसल नजर रखे हुए था, जिसकी रीडिंग मुसलसल नीचे गिरती जा रही थी। 14 फीदम, 11, 7, 5, 4। फिर रास्ते के दहाने ने निगल लिया। सीमोर का अंदाजा था कि वो 20 फीट चौड़ा होगा। बोट को 12 फीट चौड़ाई के निकालने के बाद दोनों जानिब 4 फीट बचते थे। अंदर दाखिल होते इको फाइंडर पर 1 फीदम का निशान चमक उठा। पानी के नीचे एक चट्टानी छज्जा नजर आ रहा था। यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो कश्ती की सतह से नीचे है या नहीं, मगर अब कुछ भी हो सकता था। वापसी की गुंजाइश नहीं थी। सीमोर ने अपनी तवज्जो इस पर मरकूज रखी कि बोट रास्ते के ऐन दरमियान चलती रहे। बोट इस चट्टानी छज्जे से गुजरी और चट्टानों के अक्के में वाक़ समुद्री झील में दाखिल हो गई। जे ने रेलिंग को छोड़ा और लटकाते कदमों से काकपट की तरफ बढ़ा, जहां निढाल सीमोर व्हील पर सर टिकाए हाथ लटकाए बैठा था। शानदार सीमोर, तुमने कमाल कर दिया, जे ने कहा। अब चाहो तो मैं व्हील संभाल लूँ, तुम लंगर गिरा दो। सीमोर ने बेख्याली से इस बात में सर हिलाया। फिर वो उठो डेक की तरफ चला। इसकी टांगें लर्ज रही थी। जे ने थ्रोटल खींचने और बोट की रफ्तार चौथाई कर दी। फिर सीमोर ने लंगर गिराया और जे ने इंजन बंद कर दिए। उन्होंने लाइफ जैकेट उतारी और नीचे सैलून की तरफ चल दिए। सीमोर ने मेज पर बैठकर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। थकन ऐसी थी कि इसके बोलने तक हिम्मत नहीं हो रही थी। डेविड कैली थके थके अंदाज में बेड पर बैठ गया। वो कभी सीमोर को सवारी नजरों से देखता और कभी जे को, जो दरवाजे पर खड़ा था। दोनों ने रिवॉल्वर अपने बेल्ट में उठसे हुए थे। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी रिवॉल्वर दूर नहीं किए थे। इस वक्त भी नहीं जब वो तूफान से लड़ रहे थे। जंजीर से आज़ादी के बाद कैली को कई बार ऐसे मौके मिले जब वो इनमें से किसी पर एक का रिवॉल्वर झपट सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया था। एक रिवॉल्वर हासिल करने से ज़्यादा तवाज़ुन कायम हो जाता। दूसरी तरफ ऐसे तसादुम का इम्कान भी था जिसमें वो अपनी तबाही का अपने हाथों इर्तिकाब करता। ताकत का तवाज़ुन इस हक़ सिर्फ इस तरह हो सकता था कि वो बेवकूफ़ दोनों रिवॉल्वरों पर कब्जा कर लेता और ऐसा मौका मिलने की कोई इम्कान नजर नहीं आता था। सबसे बड़ी बात यह कि फिलवक्त एक दूसरे की ज़रूरत थे। तुमने इस सुराख का भी जायजा लिया? जे ने सीमोर से पूछा। हाँ, वो पानी की सतह से खासा ऊपर है, सीमोर ने जवाब दिया। बस तो इलेक्ट्रिक वाला पंप पैंदे का पानी निकाल देगा, जे बोला। अब हम जितनी जल्दी खाने से निपट कर सो जाएं, इतना ही बेहतर है। मौसम ने इजाज़त दी तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द सफ़र शुरू कर दिया जाए। मैं तो इतना थक गया हूँ कि मुझसे खाना भी नहीं खाया जाएगा, सीमोर ने कराहते हुए कहा। लेकिन खाना ज़रूरी है, तुम्हें खाए पिए बगैर 24 घंटे हो चुके हैं। अभी बहुत सफ़र करना है हमें, अपनी तमन्नाएं कायम रखो। जे स्टोर की तरफ चल दिया। सीमोर भी कराहता हुआ उठा और उसके पीछे चल दिया। थकने ने यह एहसास भी न होने दिया कि अपने कैदी को आज़ाद छोड़े जा रहे हैं। जे ने 10 मिनट में सरबंद गजा के डब्बे निकाल लिए। इसने गैस का स्टू जलाया और खाने की तैयारी में मसरूफ़ हो गया। इतनी देर में सीमोर ने डबल रोटी के स्लाइस पर मक्खन लगाया। इसने काफ़ी तैयार की। फिर वो दोनों खाने की ट्रे लेकर सैलवन की तरफ चल दिए। उन्होंने खाने की प्लेट कैली की तरफ बढ़ाई, जिसने शुक्रिया के साथ कबूल कर ली। वो सब खाने पर टूट पड़े। कैली बार बार इन दोनों को देखे जा रहा था, ख़ास तौर पर जयपाल को। वो मुतजस्सिस निगाहें थी। इनसे कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो क्या सोच रहा है। खाने के बाद सीमोर इसी बेड पर दराज हो गया जिस पर बैठकर इसने खाना खाया था। जे प्लेटिस बैठ कर ले गया। वो वापस आया तो इसके हाथ में विस्की की भरी हुई बोतल थी। इसने बोतल खोली और बोतल ही से एक तवील घूंट लिया। फिर इसने बोतल सीमोर की जानिब बढ़ाई। सीमोर नींद से बेहाल हो रहा था। इसने इनकार कर दिया। जे ने बोतल कैली की तरफ बढ़ाई। कैली ने चौंक कर इसे देखा। लो पियो, तुम इसके मुस्तहिक हो, जे ने कहा। कैली ने हिचकिचाते हुए बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे इसे डर हो कि जे अचानक ही हाथ खींच लेगा और इसका मजाक उड़ाएगा, मगर जे ने ऐसा नहीं किया। कैली ने बोतल हाथ में लेकर एक तवील घूंट लिया और बोतल जे की तरफ वापस बढ़ा दी।
इसकी निगाहों में और अंदाज में शुक्रगुजारी थी। शुक्रिया जे ने हल्का सा कहका लगाया। सीमोर, हम एक बात भूल गए हैं। क्या? सीमोर की आवाज़ नींद में डूबी हुई थी। ये जे ने कहा और मेज़ के नीचे हाथ डालकर वो जंजीर उठाई जो दोपहर तक डेविड कैली के पाँव में बंधी हुई थी। इसका दूसरा सिरा अब भी बेड के आहनी पाए से बंधा था। इसने जंजीर को हिलाया। वो आवाज़ सुनकर सीमोर की आंखें पूरी तरह खुल गई। तुम भूल गए कि हमारा ये दोस्त अब भी कैदी है, जे ने जहरीले लहजे में कहा, और ये खुद भी इस हकीकत को भूलता जा रहा है। इसने बोट को बजाने में हमारी मदद की है तो समझ रहा है कि इसकी हैसियत ही तब्दील हो गई है। हम नर्म पड़ गए हैं और अब ये इस चक्कर में होगा कि दोस्ताना अंदाज में हमसे खुले मिले और मौका पाते हमारी पुष्ट में चाकू घोंपते। मेरा ख्याल है इस सोच को पनपने से पहले ही घूंट दिया जाए। क्या कहते हो तुम? बात सुनो जे, केली ने कहा। वो सोच रहा था कि इस मौका पर उस सवाल करने में कोई बात नहीं जो सह पहरसी से परेशान किए हुए थी। ये शख्स कहता है कि बम्बई में तुम मेरी बीवी से मिलते रहे हो, सीमोर ने कहा था। बोलो, क्या ये सच है? जे कुछ देर सोचने की अदाकारी करता फिर बोला, सच तो ये है कि ये सच है। वो मुस्कुराया। बल्कि मैं इससे ऐसे मिलता रहा हूँ जैसे मिलने का हक सिर्फ तुम्हें है, वैसे मिलता रहा हूँ इससे जैसे तुमसे शादी से पहले मिलता था। अब तुम्हारा इस पर कोई दावा नहीं रहा कैली। अगर तुमने ये चक्कर इसलिए चलाया कि मुझसे बमला को छीन लेने की सजा दो तो अहमक आदमी, किस खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। जे ने इसकी बात काट दी। ये चक्कर तो सिर्फ वसूल दौलत के लिए है। वैसे जब ये मामला ख़त्म हो जाएगा तो बमला मेरे पास आ जाएगी। तुम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे छोड़ देगी। वो मेरी बीवी है, वक्त आने पर देख लेना, जे ने बेपरवाही से कहा। फिर सीमोर की तरफ मुड़ा। सीमोर, जंजीर के ताले वाली चाबी दो मुझे। रात तक कश्मीर की सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी थी। तमाम दिन मुजाहरे होते रहे थे। सख्ती ने हालात और बिगाड़ दिए। अवामी मुजाहरों में तशद्दुद का अंसर शामिल हो गया। श्रीनगर में कई इमारतों को आग लगा दी गई। रात तक तकरीबन पूरा कश्मीर कर्फ्यू की लपेट में आ चुका था। अमरीकियों को शेख की गिरफ्तारी से बहुत तशवीश थी। अमरीकी सफीर ने इस सिलसिले में भारतीय हुकूमत से रब्ता किया था और तजवीज़ पेश की थी कि शेख को चंद दिन आज़ाद रहने दिया जाए क्योंकि वो डेविड कैली की रिहाई के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय हुकूमत ने इस तजवीज़ को सख्ती से मुस्तरद कर दिया था। अमरीकी कौंसलेट में सफ़ीर की सदारत में एक अहम मीटिंग हुई जिसमें इस सूरत हाल पर गौर किया गया। सफ़ीर ने शुल्का को बताया कि शेख के मंजर से हटने के बाद कैली की रिहाई की कोशिशें ठप हो गई हैं। ऐसे में कोच ने वो तजवीज़ पेश की जिसने इनकी उम्मीदों को फिर से ज़िंदा कर दिया। मैं समझता हूँ कि हमें अब हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता करना चाहिए, वो बोला। सफ़ीर चंद में सोचता रहा, फिर इसने इस बात में सर हिलाया। बात तो माकूल है, मैं पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर से बात करता हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर बराए उमूर कश्मीर से बात करना सूदमंद रहेगा। ठीक है, और हाँ, हमें यह तो मालूम है कि कश्मीरियों का मुतालबा $2 करोड़ का है। सफ़ीर ने कोच से कहा। तुमने CIA हेडक्वार्टर से बात की थी इस सिलसिले में? जी बेहतर। जगन्नाथ की मायूसी आखिरी हदों को छू रही थी। डेविड कैली को अगवा हुए 36 घंटे हो चुके थे और तफ्तीश की गाड़ी अभी तक सीमोर कोइन से आगे नहीं बढ़ सकी थी। रीटा पर ज़्यादा जोर नहीं डाला जा सकता था। वो इसकी यादाश्त को खतरे में नहीं डाल सकते थे। डॉक्टरों को यकीन था कि सुबह तक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और रीटा इसके सवालों का जवाब दे सकेगी। इस वक्त रीटा मस्कन दुआओं की ज़ेर असर सो रही थी और जगन इंतजार के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। उन्होंने सुबह उठकर नाश्ता किया और सफ़र का आगाज़ कर दिया। मौसम काफ़ी बेहतर था। हवा इतनी तेज़ नहीं थी, अलबत्ता बारिश हो रही थी। आसार बताते थे कि बारिश जारी रहेगी। ये इनके हक में अच्छा ही था। जे को डर था कि रीटा ने जुबान खोल दी होगी और पुलिस को इसके और सादत के मुतल्लिक मालूम हो चुका होगा। इन्हें यह भी मालूम हो चुका होगा कि वो वोट लेकर निकले हैं। ये अंदाज़ा लगाना दुश्वार नहीं होगा कि वो पाकिस्तान का रुख करेंगे क्योंकि बम्बई से कश्मीर जाने का कोई समुद्री रास्ता नहीं था। जे को तो इस पर भी हैरत थी कि भारतीय एयरफोर्स और नेवी बोट की तलाश में अभी तक हरकत में नहीं आई। बहरहाल इसे इत्मीनान था कि डेविड कैली की वजह से वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। ताहम इस सूरत हाल में मामला बहुत दुश्वार हो जाता। वो सोच रहा था कि मुमकिन है रीटा न बच सकी हो। इनकी बेहतरी इसी में थी। 7 बज गए लेकिन सूरज नहीं निकला। आसमान पर स्याह धुंध छाई हुई थी। इसे रोशन दिन हरगिज नहीं कहा जा सकता था। इनके नुक्ता नज़र से ये बात इनके हक में थी। उन्होंने इलेक्ट्रिक पंप चला दिया था। 4 घंटे में कश्ती में मौजूद तमाम पानी निकल चुका था। कश्ती पर से गैर जरूरी बोझ हटा तो इसकी रफ्तार बढ़ गई। डेविड कैली कैदी की हैसियत से बदस्तूर सैलून में मौजूद था। अब इन्हें इसकी मदद की ज़रूरत नहीं थी।